बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स हो गए हैं मेरे ख्याल, स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स तो आ गए हैं, अब जो आए हैं बाद में फिर दिल शेयर। टुडेज टॉपिक इज the erythropoiesis, as I have told you yesterday, that we'll study the main features of the different stages of erythropoiesis. जो लास्ट मेन फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ erythropoiesis, एंड सेकेंड जो है वो है then we'll study the mature features of a mature red blood cell and a few words about RBC count we'll see. ये जो कल की लास्ट एक दो स्लाइड्स है, मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, वो मैं एंड पे इंशाल्लाह रिपीट कर दूंगा, उसको हम कर देंगे. The process of formation of red blood cells is called erythropoiesis. If someone asks you that what is erythropoiesis, the process of formation of red blood cells is called erythropoiesis. Why erythropoiesis is important to study? Because to understand the anemia, which is very common in our society, the patients of anemia come very commonly in clinics. There are multiple causes which you will study in anemias, but you must be very clear about the process of formation of red blood cells, because if you know the process, you are able to understand the causes of anemia and as well as the physiological basis of management of anemia. That is important in context of this. इसमें जो है वो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में यही वो वाले स्टेप्स हैं जो कल मैंने कहे थे. प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल्स, द मेन सेल्स विच आर फॉर्मिंग द ऑल ब्लड सेल्स, और उसमें जो आरबीसीज हैं उसके लिए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स आर देयर which will convert to proerythroblast and then polychromatophil erythroblast and orthochromatophil erythroblast. ये स्टेजेस के नाम हमने कल किए थे. ये सारी स्टेजेस हैं इनिशियली. पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, proerythroblast, polychromatophil erythroblast and orthochromatophil erythroblast. Then is the reticulocyte which will form ultimately a mature erythrocyte. और फिर मैंने आपको बताया था कि ये these processes, ये जो ब्रैकेट में है, they occur in the bone marrow. They occur in the bone marrow mainly. ठीक है जी, ये जो है ये प्रोसेसेस ये हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर एंड उसके विद इन 4 to 5 days. जबकि ये जो लास्ट वाले प्रोसेस हैं रेटिकुलोसाइट और जो है एरिथ्रोसाइट, conversion of reticulocyte to erythrocyte, that occur in blood, and it takes 1 to 2 days for reticulocyte to be converted to mature erythrocyte. फिर हमने कल ये स्टेजेस की थी. डायग्रामेटिकली आप इसको थोड़ा सा दोबारा गौर से देख लें कि इनिशियली colony forming unit erythrocyte is converted to proerythroblast. We can see over here that that is converted to proerythroblast. Then the second one is the erythroblast. ठीक है जी. The erythroblast, when they are entering the circulation, the erythroblasts are converted to basophilic erythroblast, followed by the polychromatophil erythroblast, then normoblast, reticulocyte and mature red cell. अब आज हम इन स्टेजेस के सारे जो है वो देखेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्टेजेस. ठीक है, विल चेक फॉर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्टेजेस, हर एक में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं. विल सी स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले प्रोएरिथ्रोब्लास्ट. नाउ दिस इज द मेन प्रिकर्सर which will result in the formation of the red blood cell. It has no hemoglobin in the start. Nucleus is 12 micrometer. एक याद रखिएगा कि gradually nucleus will decrease in size, it will shrink and then ultimately disappear because the mature RBCs have no nucleus, right? So over here
there is no hemoglobin in the proerythroblast stage. Nucleus is 12 micrometer and it is also containing the nucleoli. यहां पे न्यूक्लियोलाई भी जो हैं वो मौजूद हैं. So proerythroblast, no hemoglobin, nucleus is 12 micrometer and contain nucleoli. These are the important features which you should be very clear कि ये यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर है. Then proerythroblast के बाद next है basophilic erythroblast. अब यहाँ आप देखें, apparently before I tell you, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है. Just एक अंदाजा लगाएं, then I'll explain it. डिवीजन सर. बिल्कुल सिंपल सी बात. So this stage is also called early normoblast. अब यहाँ एक तो न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हुए and it shows mitosis. अब यहाँ पे डिवीजन हुई, it is showing mitosis and cytoplasm is deep blue due to RNA. अगर आप इसका देखें तो साइटोप्लाज्मिक स्टेन जो है वो ब्लूइश कलर का है ड्यू टू आरएनए एंड हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग. लेकिन यहाँ बहुत थोड़ी हीमोग्लोबिन होती है, बट इट स्टार्ट्स अपीयरिंग एट दिस स्टेज. सो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में it is also called early normoblasts. Nucleoli disappear. The cell is showing mitosis. As the diagram shows, the cytoplasm is deep blue. This is due to increase in RNA, ribonucleic acids, or hemoglobin start appearing. However, a little hemoglobin is present over here. Then next, polychromatophil erythroblast. Now this polychromatophil erythroblast is also called late normoblast. This is also called the late normoblast. And now the nucleus becoming smaller. Nucleus will become smaller. The coarse chromatin network will appear. And hemoglobin increase. And now this stain is eosinophilic stain. अब यहाँ eosinophilic stain होगा, लेकिन डबल स्टेन पॉलीक्रोमैटोफिल इसलिए कह रहे हैं कि जो दूसरा स्टेन आरएनए भी मौजूद है, सो बेसोफिल स्टेन भी होगा और हीमोग्लोबिन आ रही है तो eosinophil भी है. अगर आप पिछले वाले में देखें तो इसमें ये था कि बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज डीप ब्लू स्टेन ओनली एंड हीमोग्लोबिन जस्ट लिटिल हीमोग्लोबिन थी, सिग्निफिकेंट नहीं थी. लेकिन यहां पे आके द हीमोग्लोबिन इज इंक्रीजिंग, द eosinophil stain hemoglobin की वजह से and RNA की वजह से basophilic stain will also be there. That will be picked up by these cells. So polychromatophil erythroblast, also called late normoblast. Nucleus smaller, coarse chromatin appear, hemoglobin start increasing from this stage and it will take up eosinophil stain और RNA जो है वो बेसोफिल स्टेन की, आरएनए की वजह से बेसोफिल स्टेन होगा. देन ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. ऑर्थोक्रोमैटिक में अब ये देखें, पिछले वाले में लेट नॉर्मोब्लास्ट था, ठीक है. दिस इज कॉल्ड आल्सो इन सम बुक्स नॉर्मोब्लास्ट, लेकिन आप बेशक ये वाली स्टेज जो ऑर्थोक्रोमैटिक के नाम से याद रखें तब भी ठीक है. इससे आप अगर कंफ्यूजन होती है तो मत करें, आपको ये रखना याद आसान है. बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमैटिक, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ये नाम याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान है. सो न्यूक्लियस बिकम स्मॉलर, pycnosis, which is called shrinkage of the nucleus. This term is used for the shrinkage of the nucleus. The nucleus will become smaller and ultimately the nuclear lysis and nuclear extrusion will occur at orthochromatic stage. Nuclear lysis and nuclear extrusion will occur
at this stage. So this is the orthochromatic erythroblast. Nucleus has become smaller. पहले small होगा, पिक्नोसिस श्रिंकेज होगा, देन न्यूक्लियर लाइसिस होगा एंड न्यूक्लियर एक्सट्रूजन हो जाएगी. बट obviously the hemoglobin content is there. Hemoglobin will continue to accumulate over here. यहां तक आई होप यू ऑल आर क्लियर. मैं एक दफा इन सारों को स्टेजेस को दोबारा रिवाइज भी करूंगा, बिकॉज इसको 2-3 दफा हम रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद रहेंगे, वरना एकदम देख के वो लगता है कि जैसे ये पता नहीं क्या हो रहा है. बट विद बाय रिपीटेड रिवीजन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट इंशाल्लाह. इस पे परेशान नहीं होना. ये एकदम मिक्सअप सी होती लग रही होंगी आपको, बट इट इज नॉर्मल थिंग. ये सब कोई जाहिर है पहली बार जिंदगी में देखेंगे, दे विल गेट मिक्सअप, बट इफ यू रिपीट इट फॉर सम 3 to 5 टाइम्स तो वो क्लियर हो जाती हैं. देन इज द रेटिकुलोसाइट स्टेज. नाउ रेटिकुलम, अब यहाँ पे रेटिकुलोसाइट स्टेज ये है कि ओनली अब यहाँ पे रेमिनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, रेमिनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ रह गए हैं. ठीक है, ये इसलिए रेटिकुलम इसका नाम करके रेटिकुलोसाइट लिंक किया कि रेमिनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस यहाँ हैं जो कि मजीद हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करेंगे. हीमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन, आज आप सब्सिक्वेंट बायोकेमिस्ट्री में साथ पढ़ेंगे. एंड few mitochondria are also present at this stage. Remnants of endoplasmic reticulum and Golgi apparatus यहाँ मौजूद हैं, which will continue to synthesize the hemoglobin. Few mitochondria are there, और young RBCs में 34% hemoglobin होती है, उनका content जो है. So वो सारा content यहाँ fill up हो जाएगा रेटिकुलोसाइट में. लेकिन रेटिकुलोसाइट का अपना काउंट जो है 1% of the red cells होता है. 1% of the red cell is the count of reticulocytes. और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि नॉर्मली 1% है. कल मैंने थोड़ा सा इसको टच किया था, आज इसको एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा थोड़ा डिटेल में कि रेटिकुलोसाइट काउंट इन नॉर्मल पीपल इज 1%, लेकिन इसकी प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिहाज से. प्रोग्नोसिस कहते हैं कि किसी प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को अगर देखना हो या ट्रीटमेंट को कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो रेटिकुलोसाइट, इसको आमतौर पर रेटिक काउंट भी कहा जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट को देखा जाता है. अब देखो 1% है नॉर्मल, 1% ऑफ रेड ब्लड सेल्स. लेकिन इफ अ पेशेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम्स टू यू, राइट, यू आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट, आपने देखा उसका, यू विल सी पिक्चर, जब एनीमियास पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है. माइक्रोस्टेटिक और हाइपोक्रोमिक पिक्चर ये आपको आगे एनीमिया में हम समझाएंगे. तो अब ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर के साथ पेशेंट अगर आया तो आप उसको, यू मे स्टार्ट आयरन डेफिशिएंसी में एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन आवर पॉपुलेशन. माइंड इट कि एनीमिया जब भी हमारी पॉपुलेशन में आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलेस के कोई बहुत और ऑब्वियस कॉज ना हो, लाइक स्टोमक का फंक्शन, B12 की जो इंट्रिंसिक फैक्टर है B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, आपको गैस्ट्रेक्टमी का पेशेंट है तो यू मे थिंक ऑफ एनीमिया ड्यू टू दैट इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि मेगालोब्लास्टिक है, वो भी आप पढ़ेंगे. लेकिन ज्यादा कॉमन जो हमारे यहाँ एनीमिया है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, अब अगर एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट आ गया एंड यू प्रिस्क्राइब द आयरन टू दैट पेशेंट, ठीक है, आयरन के साथ आमतौर पे एक और भी आपको बेस सी आपकी बननी चाहिए यहीं पे कि यूजुअली वी आल्सो डीवर्म दी पेशेंट. डीवर्म कहते हैं कि उसको जो इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं उनकी, दे आर टेपवर्म टाइप ऑफ वर्म्स व्हिच इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच देयर इज आयरन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन, एनीमिया इज मोर कॉमन. ठीक है, टेपवर्म वो है कि जो जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके रिजाइड करते हैं. तो एस्कैरीज, लम्ब्रिकॉइड, टेपवर्म, ये आपने शायद नाम सुने हो पहले. तो खैर वर्म इन्फेस्टेशन, उसको आपने डीवर्म कर दिया, ऐसी मेडिसिन दे दी जो उसके इंटेस्टाइनल वर्म्स को एक्सपेल कर दें, उनको खत्म करके, उनको डेड करके एक्सपेल कर दें, और साथ आपने आयरन स्टार्ट कर दी. नाउ एक तो ये कि कल जो मैंने कहा उस बैकग्राउंड पे कि इट टेक्स एटलीस्ट 7 days फॉर द रिस्पॉन्स. ठीक है, so based on this concept you will not call the patient of
the anemia like iron deficiency after prescribing iron के जी 5 days के बाद आके अपना RBC count hemoglobin repeat कराएं. This will not happen. Obviously you will give some time, you know it 7 days है. Say for example after 2 weeks या after 1 month आप उसको बुलाते हैं. Now in that case, especially if there was a too much deficiency of RBC count, ज़रा RBC कम होगा तो hemoglobin भी कम होगा, right? That is RBC का ज़्यादा बड़ा function तो other functions are also there, but hemoglobin content is very important, जो कि oxygen carrying capacity और सारे काम कर रहा है, buffer है और सारे function. तो अब ये जो you will check for the when you check blood complete picture आप देखेंगे उसमें RBC count में तो you will be interested to look for the retic count. नॉर्मली 1% है. अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर योर ट्रीटमेंट इज रिस्पॉन्डिंग तो रेटिकुलोसाइट काउंट शुड इंक्रीज. मतलब नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन हो रही होगी. अब जब नॉर्मल से ज्यादा होगी तो बिकॉज सर्कुलेशन में आरबीसी आर डेफिशिएंट, आई एम रिपीटिंग इट कि सर्कुलेशन में देखो आरबीसी कम है, राइट? तो अब प्रोडक्शन जब आपने आयरन दे दी, डीवर्म कर दिया, आयरन मिलना शुरू होगी, आरबीसी तेज तेज बनेंगे. जब वो रैपिडली बनेंगे तो उसकी वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट रेड सेल काउंट में 1% से ज्यादा होगा. से 3-4% अगर रेटिक काउंट आ रहा है, मे भी अभी नॉर्मल आरबीसी काउंट रिस्टोर नहीं भी हुआ 2 हफ्ते बाद, लेकिन अगर रेटिक काउंट ज्यादा हो गया तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यू विल बी सेटिस्फाइड कि my treatment, my dosage, my diagnosis, my drugs are okay. Right? I'm just repeating it again because this is very important concept. ये जो stages of erythropoiesis है ये तो आपको ज्यादा प्रॉफ तक याद रहेंगी, शायद फिर भूल भी जाएं. But the basic concept from these stages of erythropoiesis which has clinical applicability is that कि a patient of iron deficiency anemia or of any other cause, if you start treating the cause after 2 to 3 weeks, you check when you are checking the RBC count, so reticulocyte count should be increased. Like if this percentage is 3 to 5% reticulocyte count among the red cells, यानी अगर 100 red cell हैं तो percentage wise नॉर्मल अगर 1 होता है या 2 होते हैं तो इसमें अगर 4 to 6 red cell 4 to 6 रेटिकुलोसाइट आ रहे हैं रेड सेल में तो यू विल बी सेटिस्फाइड कि आपकी ट्रीटमेंट प्लान ठीक चल रहा है, द प्रोग्नोसिस विल बी गुड, राइट? लेकिन अगर रेटिकुलोसाइट काउंट इंप्रूव नहीं हो रहा एंड साथ आरबीसी काउंट भी, तो देन यू हैव टू रीथिंक अबाउट द डायग्नोसिस कि शायद आयरन डेफिशिएंसी नहीं थी. से किसी को आपने आयरन स्टार्ट कर दी और उसका रेटिकुलोसाइट काउंट नहीं हुआ इंक्रीज और ना ही आरबीसी कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हुआ, तो देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, देयर कुड बी सम अदर कॉज which has resulted in this iron deficiency और that's why आप उसकी ट्रीटमेंट प्लान को चेंज कर देते हैं. सो रेटिकुलोसाइट काउंट इज दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. देन वी विल मूव, बिफोर मूविंग टू आरबीसी मैच्योर, मैं ये सारी स्टेजेस को एक दफा ओवरव्यू देता हूं. देन यू पीपल विल राइट इट डाउन. ये जो नाम है सारे, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक और ये नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट, ठीक है, ये नाम आपने लिखे हुए पास. इन पे आप मेरे इस बताने के बाद यू पीपल, आई विल गिव यू 5 मिनट्स एंड यू विल राइट द फीचर्स ऑफ ईच सेल ताकि आपको याद रह जाए दोबारा. ट्राई टू राइट, जुबानी लिखें. अभी एक दफा सुन लें दोबारा कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में देयर इज नो हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियस इज 12 माइक्रोमीटर, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलाई. ठीक है जी, हीमोग्लोबिन कोई नहीं, न्यूक्लियस 12 माइक्रोमीटर, contains nucleoli. Then basophilic erythroblast, in this stage the nucleoli disappear, it shows mitosis. Now cytoplasm sorry, is deep blue color because there is increase in RNA and hemoglobin starts appearing, although very little hemoglobin, but starts appearing at the basophilic erythroblast stage. Hemoglobin starts appearing at the basophilic erythroblast stage. ठीक है जी. Then next is the polychromatophil erythroblast.
late normoblast become, अब यहाँ nucleus becomes smaller, coarse chromatin appear, hemoglobin will increase, due to which it has eosinophil stain, and RNA are there, and basophilic stain pick up करेगा, दोनों stains हैं, and hemoglobin यहाँ न्यूक्लियस मजीद स्मॉल हुआ और hemoglobin will increase, इतनी ज्यादा होगी कि उसकी वजह से स्टेन भी पिकअप हो गया इस पिछली स्टेज में. इफ यू जस्ट आई एम जस्ट कंपेयरिंग सर इट, ये कोर्स क्रोमेटिन किसे कहते हैं सर? क्रोमेटिन नेटवर्क आपने न्यूक्लियस में पढ़ा हुआ है ना, तो वो नेटवर्क यस, एक स्प्रेड होके पूरा जो एक बन जाता है गुच्छा सा, दैट इज कोर्स क्रोमेटिन नेटवर्क इज प्रेजेंट. So ओके सर. this, and hemoglobin increase, eosinophil stain is there, right? And RNA is also there. So hemoglobin भी है, RNA भी कंटेंट है, तो eosinophil stain भी होगा और basophilic दोनों stain पिकअप कर रहे हैं. Then orthochromatic erythroblast, जिसको normoblast भी कह रहे हैं, nucleus becomes smaller, shrinkage of the nucleus is occurring, और फिर nuclear lysis और extrusion. इसमें मेन वही बात है, हीमोग्लोबिन तो ऑब्वियसली बढ़ रही है, माइंडेड वो यहाँ शो नहीं की, हीमोग्लोबिन इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर लाइसिस, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन और एक्सट्रूजन भी हो जाएगी, न्यूक्लियस यहाँ बाहर निकाल दिया जाएगा इसमें से, और फिर रेटिकुलोसाइट contains the remnants of endoplasmic reticulum and Golgi apparatus which continue to synthesize hemoglobin. There are few mitochondria also there, और ये synthesize करते रहेंगे because young RBC में 34% hemoglobin is there. और एंड पे अभी जब आरबीसी बनना है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डिसअपीयर हो जाने, एंड दिस रेटिकुलोसाइट इज 1% ऑफ रेड सेल. इंपॉर्टेंस इसकी आपको मैंने बता दी. अब आप लोग सारे जो हैं इसके फीचर्स जो हैं, यू पीपल मे राइट हर स्टेज के आगे जरा फीचर्स लिखें ताकि आपको याद हो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. एक्सक्यूज मी सर. जी सर पॉलीक्रोमेटिक स्टेज में आपने जो है आरएनए स्टेन आ जाता है. जी जी जी. सर लेकिन बेसोफिल एरिथ्रोसाइट्स में, एरिथ्रोब्लास्ट में तो न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाते हैं और इसमें न्यूक्लियोलाई में तो आरएनए होते हैं. लेकिन आरएनए यहाँ पे मौजूद है इसमें, दे आर डिसअपीयरिंग, बट सर आरएनए लेकिन यहां तक मौजूद है इस अगली स्टेजेस में, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे चल के डिसअपीयर होता है. सर आरएनए तो न्यूक्लियोलाई में नहीं होता. या लेकिन यहां वैसे भी मौजूद है ना आरएनए, अभी ओके. खत्म होके एक्सट्रूड तो नहीं हुआ ना अभी, अब डिसअपीयर हो रहे हैं, कंप्लीट डिसअपीयरेंस नहीं हो रही इसमें. आरएनए इज देयर यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, देखें उसने कहा है कि साइटोप्लाज्म पिकअप कर रहे हैं और थ्रेड्स ऑफ आरएनए में भी प्रेजेंट ओवर देयर. ओके सर, थैंक यू.
ओके जी, अब जब ये आरबीसी बन जाता है यानी रेटिकुलोसाइट से ही मोस्ट ऑफ द टाइम, now the RBCs are supposed to pass from bone marrow into the blood capillaries. कल मैंने ये बताया था, आपको याद हो कि आरबीसीज जो है, एक तो उसमें हमने कहा था देयर आर ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, राइट। अब और फिर एक हमने कहा था कि दिस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द ब्लड कैपिलरीज. These RBCs are traveling from bone marrow into the blood capillaries over here by diapedesis, that is squeezing through the pores of the capillary membrane. ये अगर आप देखें इसको, ये वाला इसी से मिलती जुलती स्लाइड कल भी थी कि लाइक एक रेटिकुलोसाइट है. नो, दिस इज द डायपेडिसिस. डायपेडिसिस में सिंपल वर्ड्स में मैं इसको इस तरह समझाऊं कि जिस तरह एक नैरो जगह से द कैट पासिस फ्रॉम दैट इज द प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस. ठीक है, ये एक डायग्राम पहले आपको बता रही है कि यूं बोन मैरो के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनसाइड, और ये जो है दीज फ्रॉम द बोन मैरो द रेटिकुलोसाइट विल पास वाया डायपेडिसिस एंड रीचेस द सर्कुलेशन. ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट C3 और हार्मोन्स कॉर्टिसोल एंड और उसके साथ जो है टेस्टोस्टेरोन एंड सम बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये मैंने तीनों चीजें आपको चारों बताई थी कल कि दे आर आल्सो फैसिलिटेटिंग दिस. सो द डायपेडिसिस इज द प्रोसेस बाय विच आरबीसी, यानी ये सारी आप देखें, अब आप यहाँ पे प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल और ये सारे प्रोसेसेस हुए कि जब वो मैच्योरेशन हो रही थी, आरबीसी थ्रू इट्स मैच्योरेशन, ये सारे प्रोसेस हो रहे थे. ठीक है, यहाँ पे अब ये इसी में शो किया, ऑल्दो सारी चीजें शो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो है यहाँ पे रेड ब्लड सेल मैच्योरेशन में जस्ट रेटिक फाइनल होने से पहले जो है वो ये न्यूक्लियस एक्सट्रूजन भी दिखाई गई, एक्सपल्शन ऑफ द न्यूक्लियस. यहां जाहिर से इधर बीच में की श्रिंकेज हुई और फिर यहाँ एक्सट्रूड करके तो नॉन न्यूक्लिएटेड रेटिक जो है दैट विल कम आउट एंड विल बी कन्वर्टेड टू मैच्योर आरबीसी. ठीक है, सो ये वो स्टेजेस हैं जो भी हमने पढ़ी हैं. अब इसके बाद आगे एरिथ्रोसाइट क्या है? इट इज अ राउंड बाइकॉन्केव डिस्क शेप सेल. Erythrocytes are round biconcave disc shaped cells. And they have smooth contours. You can see over here, the contours are smooth. Diameter is 7.8 micrometer. कुछ बुक्स 8 माइक्रोमीटर भी लिखती हैं. ये जिस तरह डायग्राम में थोड़ा 7.5 है, तो 7.5 to 8 माइक्रोमीटर यूजुअली मीन 7.8 माइक्रोमीटर, ये गाइटन की वैल्यू ये वाली है. सो diameter is 7.8 micrometer and normally no variation in size and shape. नॉर्मल में, ये नॉर्मल को अपने अंडरलाइन करें बेशक, कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि ये साइज बहुत लाइक 3 माइक्रोमीटर का बन जाए या 12 माइक्रोमीटर का बन जाए. अगर बड़ा होगा 12 माइक्रोमीटर का तो फिर वो एरिथ्रोसाइट नहीं कहलाएगा, मेगालोब्लास्ट हो जाएगा और वो एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा, राइट. और सिमिलरली अगर साइज छोटा रह जाए तो वो माइक्रोसिटिक में चला जाएगा. नॉर्मली देयर इज नो ग्रॉस वेरिएशन इन साइज एंड शेप. रेंज है कि 7.5 to 8 माइक्रोमीटर कह लें, 7.8 माइक्रोमीटर मीन हो गया, बट देयर इज नो वेरिएशन इन साइज एंड शेप, राइट. 2 माइक्रोमीटर इसकी आप देखें एवरेज थिकनेस है एंड 7.5 यहाँ शो किया है, 7.8 इतना इसका जो है वो साइज है. स्टेन विद eosinophil and more stain at the periphery. And can deform easily. Now this is a very important property of red blood cell. Red blood cells, they
may pass, and they have to pass in some parts of circulation through very narrow spaces, in some capillaries, as well as in a typical एक जो है important वो है spleen का trabecular meshwork. आप spleen की histology भी आगे आपको anatomy वाले पढ़ाएंगे कि spleen के अंदर trabecular meshwork है, that is really very, spleen का जो meshwork है that is, spleen का जो meshwork है that is a narrow space through which RBCs have to pass. और यही मैं बता दूं एक और चीज के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी when RBCs are passing through near the pulmonary alveoli, pulmonary capillaries के अंदर, तो वहां पे भी through narrow space इतना कि ये RBC का ये पूरा जो साइड वाला है ये कैपिलरी के साथ इन टच होता है, and which helps in the transfer of gases at the level of pulmonary capillaries. तो अब ये लाइक जिस तरह ये ब्रैकेट है इसको आप समझ लें कि ये एल्वियोलर ये कैपिलरी वॉल है और यहाँ पे ये जहां 7.5 माइक्रोमीटर लिखा है समझें कि ये एल्वियोलस होता है, तो ये इट कैन पास थ्रू दैट नैरो कैपिलरी और इट कैन डिफॉर्म इजीली. इसका जो है इट कैन डायपिडिसिस देखो वही कर सकता है ना जो डिफॉर्म कर सके, जिसकी शेप चेंज हो सके, जो फ्लेक्सिबल हो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, अभी हम आगे मैं आपको बताता हूँ, एंकारिन स्पेक्ट्रिन वगैरह, उनकी बेस पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है. So it can pass through narrow spaces of the circulation easily और deformity. लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोटीन्स कॉज क्या है किसी को नहीं पता, बट दे आर यूजुअली, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज मेंटेन्ड अप टिल 120 डेज रफली, एवरेज 120. ठीक है, 120 डेज के बाद दी आरबीसी इसकी प्रोटीन्स के अंदर ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है कि they may not be that much flexible, they may not be that much easily deformable in all parts of circulation. I am repeating it कि RBC normally it can deform easily, right? When it passes through circulation, easily deform हो जाती है, and this deformity is helpful for the passage through narrow spaces of the capillaries, as well as pulmonary capillaries in typical, as well as the trabecular meshwork of spleen. लेकिन जब 120 days old RBC हो तो it will pass, when it is passing through spleen, so the problem is that over there कि the membranes are not that much stable after 120 days, so they may rupture, और वहां rupture जब हो जाएंगी तो that is why RBC का लाइफ स्पैन जो है 120 days है. Why only 120? This is not very much clear. ये कहीं पे भी नहीं मेंशन, बट इट इज कंफर्म कि अराउंड 120 प्लस माइनस 10-20 डेज वो एक है, रेंज तो है, लेकिन रफली हम लाइफ स्पैन अगर आपसे कोई पूछे तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, राइट? एंड ये नॉर्मली डिफॉर्म कर सकती है बट इट कैन सस्टेन ओनली फॉर 120 डेज. 120 डेज से ओल्ड जो आरबीसी होगी, when it is passing through the trabecular meshwork of spleen, it is destroyed. That's why spleen के लिए एक term use करते हैं graveyard of RBCs. Spleen is also called graveyard of the RBCs because अब जितने भी RBCs होंगे जो 120 days से old हैं, they are when traveling through this spleen they will be destroyed. फिर आगे उसकी fate of RBC एक अलग कहानी है कि वहां हीम अलग होती है, ग्लोबिन अलग होती है और प्रोटीन में जाती है, वो आप डिटेल फेट ऑफ आरबीसी में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम में. अच्छा, फिर अब इसी पे एक पॉइंट और, इट कैन डिफॉर्म इजीली, ये हमने कह दिया, स्मूथ कंटूर कह दिया. अगर किसी पेशेंट को, और ये साइज जो है इस डायमीटर के साथ, ठीक है, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट, अगर आरबीसी का साइज बड़ा रह जाए, मैच्योर ना हो, आपने देखा मैच्योरेशन स्टेजेस के अंदर आरबीसी का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस एक्सपल्शन, और साइज छोटा होता जाता है. अगर वो बड़ा रह जाए, मैच्योरेशन फेलियर, ठीक है, B12 विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन फेलियर. तो आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़ेंगे कि आरबीसीज ऑफ लार्जर साइज में बी प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन, यानी उस टाइम मैच्योरेशन फेलियर जब हो जाएगा तो मैच्योर होकर आरबीसी छोटा साइज होने की बजाय थोड़ा सा बड़ा रह जाएगा, लाइक 12 माइक्रोमीटर का, और वो सर्कुलेशन में आ जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये आरबीसी बड़े साइज वाला
when it will pass through the spleen or some other narrow spaces, but typical spleen example दे रहा हूं कि वहां trabecular meshwork है, तो that is easily break up, उसका easily broken up, तो वो वहां जल्दी break up हो जाएगा और that will result in decrease in the count. So megaloblastic anemia के अंदर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो है वो आरबीसी काउंट जो है वो उसका हो जाएगा, आरबीसी काउंट जो है वो नॉर्मली आ जाएगा उस पे कम पे हो जाएगा, बिकॉज द मेगालोब्लास्ट आर देयर एंड दीज मेगालोब्लास्ट आर इजीली डिस्ट्रॉयबल, फिर रिजल्ट इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब आरबीसी का जो है ये लास्ट स्लाइड, इसको एक नजर दोबारा देख लें। आवाज रख लिया, मैंने म्यूट कर दिया, इधर से मैंने म्यूट कर दिया, मेरी आवाज नहीं जाएगी साथ। So I have a question. और मेरी आवाज जा रही है, बच्ची का देना शुरू हो रहा है। Sir, आप mute हो। सर स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं और आपका माइक भी म्यूट है सर। सर को पता है यार। बताएं, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी जो है वो नेगेटिव सरफेस चार्ज और इट इज अ बैग ऑफ फ्लूइड विद डिसॉल्व सब्सटेंसेस एंड हीमोग्लोबिन। अब आप देखें, हमने सर कहा कि ये स्लाइड शो नहीं हो रही। fluid है क्या? सर स्लाइड शो नहीं हो रही। सर आपकी स्लाइड नहीं शो हो रही सर। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसको दोबारा जरा,
जी एक मिनट, वो थोड़ा उसमें शायद नेट का इशू आया था, मैं दोबारा किया अभी। ओके, नाउ क्लियर। यस सर। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी में नेगेटिव सरफेस चार्ज और इट इज बैग ऑफ फ्लूइड विद डिसॉल्व सब्सटेंसेस एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, कि ये जो है, अब देखो बैग ऑफ फ्लूइड रह गया, क्योंकि हमने कहा न्यूक्लियस निकल गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी अपैरेटस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इट इज ओनली बैग ऑफ फ्लूइड। कुछ सब्सटेंसेस हैं, एक तो मेम्ब्रेन जो बाहर है वो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, वही जो सेल मेम्ब्रेन का कंटेंट है, दैट इज टिपिकल कंटेंट इज प्रेजेंट फॉर रेड ब्लड सेल। लेकिन इनर प्रोटीन जो मॉलिक्यूल जो साइटोस्केलेटन बना रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, कि इट इज डिफॉर्मेबल, अपनी शेप चेंज करके डायपेडिसेस और नैरो स्पेसेस से जा सकता है, नो, बेस्ड ऑन दीज प्रोटीन्स, स्पेक्ट्रिन, एक्टिन एंड कायरिन, और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका लाइफ स्पैन 120 डेज है। 120 डेज के बाद फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट विल बी डिफॉर्म्ड। ठीक है जी, सो दिस इज द बेसिक। स्लाइड शो नहीं हो रहा? हो रही है सर। अच्छा, ये मुझे मैसेज आ रहे हैं बीच में आप लोगों के। हो रहा है सर। हो रहा है ना? पहले पुराने मैसेजेस हैं। अच्छा, वो पुराने होंगे फिर, ठीक है। सो अब ये जो है मेम्ब्रेन, आउटर ग्लाइकोप्रोटीन कोट और लिपिड बाइलेयर, ये आ गई मेम्ब्रेन, और इनर प्रोटीन्स में साइटोस्केलेटन। सो आरबीसी का जस्ट मैं पिछली स्लाइड से दोबारा लिंक करूं, क्योंकि थोड़ा सा लिंक हमारा ब्रेक हुआ है, कि मैच्योर आरबीसी राउंड बाइकनकेव डिस्क है, स्मूथ कंटूर, 7.8 माइक्रोमीटर इज साइज, नॉर्मली नो वेरिएशन इन साइज एंड शेप, और कैन डिफॉर्म इजीली, इसमें हम डिटेल बात कर चुके हैं। अब ये नेगेटिव सरफेस चार्ज है, इट इज अ बैग ऑफ फ्लूइड विद डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस एंड हीमोग्लोबिन। मेम्ब्रेन जो है इसकी ग्लाइकोप्रोटीन कोट है ऊपर, एंड लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड 55%, कोलेस्ट्रॉल 45%, और इनर प्रोटीन जो है वो स्पेक्ट्रिन, एक्टिन और एनकायरिन है। नो सब सेलुलर पार्टिकल्स, यानी ना न्यूक्लियस है, ना गोल्गी अपैरेटस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड आरबीसी में। अब देखें, उसने सिवाय हीमोग्लोबिन के और जो बाहर उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ फंक्शन है, या हीमोग्लोबिन की वजह से फंक्शन है, इटसेल्फ बहुत ज्यादा उस तरह के फंक्शन नहीं है। सो जो एनर्जी चाहिए वो थोड़ा बहुत सोडियम पोटेशियम पंप उसका मेंटेन करने के लिए, जो हर सेल का, और आयरन इन फेरस फॉर्म रखी जाती है वहां पे। इसके लिए ग्लूकोज जो है उसका भी GLUT1, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 एक है, ये आप एंडोक्रिनोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर देयर। तो ग्लूकोज जो है दैट इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय आरबीसीज। आरबीसीज को इंसुलिन नहीं चाहिए। आई होप यू ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, few exceptions are there, but generally body needs insulin for entry of glucose into the cells। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो आरबीसीज के अंदर GLUT1 रिसेप्टर के थ्रू चला जाता है, यूजुअली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एनर्जी जो है आरबीसीज में, ये आपको बायोकेमिस्ट्री वाले भी डिटेल में पढ़ाएंगे जब ये पाथवेज, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, एमडॉन मेयरहोफ पाथवे और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एचएमपी शंट वाले, ये सारे ऑपरेट करते हैं फॉर एनर्जी पर्पसेस। ग्लूकोज ज़ाहिर चाहिए सारे के लिए भी, तो ग्लूकोज एंट्री इज थ्रू GLUT1। इसकी डिस्क्रिप्शन फिजियोलॉजी के स्कोप में नहीं है, बस आपको इतना याद हो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस यूटिलाइजिंग एमडॉन मेयरहोफ पाथवे एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज आर ऑपरेटिंग। विल नेवर आस्क यू द डिटेल, ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री का डोमेन है, वो आपसे पूछते हैं इस पे कि क्या है किस तरह है, बट आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, अब आप देखें यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, देयर आर नो एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, नो न्यूक्लियस, नो गोल्गी अपैरेटस, कुछ नहीं, लेकिन एनर्जी जो है ग्लूकोज डायरेक्टली आके GLUT1 के थ्रू और ये पाथवेज ऑपरेट करते हैं। अब आरबीसी काउंट देखें, इट्स रिमार्केबली कांस्टेंट। मेल में 5.2 प्लस माइनस 0.3 टू 10⁻⁶, ठीक है, और फीमेल में 4.7 प्लस माइनस 0.3 इंटू 10⁻⁶। ये है आरबीसी काउंट, जो कि नॉर्मली होता है, इससे ग्रॉस वेरिएशन नहीं आती,
अगर ये काउंट बढ़ जाए तो ग्रॉसली बढ़ जाए तो दैट इज पॉलीसाइथीमिया, और कम हो जाए तो दैट इज एनीमिया। लाइफ स्पेन मैंने आपको बता दिया 120 डेज, प्लस माइनस 30 डेज का है वेरिएशन, लेकिन जनरली आपसे अगर पूछें तो आप यही कहेंगे 120 डेज उसका लाइफ स्पैन है। सो टुडे वी हैव लर्नड, अब हम जैसे इसको देखें, कल वाली एक स्लाइड भी जो मैं ला के उसको देखूं कि हमने साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोएसिस कल कही थी कि मीजोब्लास्टिक स्टेज है, हेपेटिक स्टेज है और माइलॉइड स्टेज है। प्लीज बी अटेंटिव। मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। तो न्यूक्लिएट मीजोब्लास्टिक में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर फॉर्म, और ये जो मेच्योर आरबीसीज नहीं होती उस स्टेज में, बिकॉज इस स्टेज पे यॉर्क सैक और मेसियोथेलियल लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा में ये बनती हैं 3rd वीक के आसपास, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली मीजोब्लास्टिक स्टेज। फिर 6 वीक्स में स्टार्ट होती है लिवर से, और दैट इज हेपेटिक स्टेज। किसी हद तक स्प्लीन और लिम्फोइड टिश्यू के अंदर भी बनती हैं आरबीसीज। सो मीजोब्लास्टिक स्टेज के बाद हेपेटिक स्टेज, और फिर माइलॉइड स्टेज। फ्रॉम 3rd मंथ ऑन द बोन मैरो इज फॉर्म्ड, बोन मैरो इज फॉर्मिंग। और फिर कल मैंने आपको वही बताया था कि बोन मैरो अप टिल आफ्टर 20 इयर्स, सिवाय स्टर्नम और दूसरी थिन बोन्स के, वर्टिब्रा और आइलियम और वो मैंने आपको बताई थी जो, और रिब्स, उनके अलावा बाकी बोन्स जो हैं वो बनाना स्टॉप कर देती हैं, ग्रेजुअली दे डिक्लाइन। और उसमें जो है फिर हमने देखा कि जो आरबीसीज हैं दे आर फॉर्म इन दी बोन मैरो। जब तो उसका प्रोलिफरेशन होती है, प्रोएथ्रोब्लास्ट आ रहा है प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट सीरीज से। आई होप आप सबको याद हो गया होगा कि प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, दे आर इन मेजर सेल्स ऑफ ऑल, जो हमने कहा था कि एरिथ्रोब्लास्ट और मेगा कैरियोब्लास्ट और वो सारे के सारे मेगा कैरियोसाइट्स और फिर आगे प्लेटलेट्स, सवाई लिम्फोसाइट्स के सारे बना रहे हैं। तो उसमें जो एरिथ्रोसाइट्स वाला है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, दे विल फॉर्म प्रोएथ्रोब्लास्ट, देन बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक, रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट की स्टेज तक आपको ये पता है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। इसको आप दोबारा जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, यहाँ रवियन है, कहाँ हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हुई, यहाँ ज्यादा हो गई, यहाँ और ज्यादा, यहाँ न्यूक्लियस श्रिंकेज हुई, फिर हुआ कुछ ना एंड पे आके इधर जो है वो थोड़ा बहुत तो हीमोग्लोबिन बन रही है, लेकिन न्यूक्लियस एक्सक्लूजन जब हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये जो है मेच्योर एरिथ्रोसाइट इज फॉर्म। सो ये फीचर्स आपको क्लियर होने चाहिए। फिर हमने देखा कि RBC is a biconcave disc structure, main diameter 7.8 micrometer. It can deform easily. ठीक है जी। Bag of fluid with dissolved substances and hemoglobin. Subcellular particles नहीं है। Metabolism, anaerobic respiration through glycolysis, और pentose phosphate pathway जो है ये इसका metabolic pathways हैं जो कि जिससे ये अपना metabolism maintain करता है। So males का जो ये 5 कॉमा नहीं है, सॉरी 5 पॉइंट, सॉरी ये कॉमा इसलिए कि ये मैंने पूरा उसमें कर दिया, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10, यानी 52 लाख प्लस माइनस 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, और 47 को इसी तरह 47 लाख प्लस माइनस 3 लाख पर क्यूबिक इन फीमेल। उसको 5.2 इंटू 10⁻⁶ ले जाएं, या आप इस तरह लिख लें, जो भी लिखें। ट्रेडिशनली 5.2 करके लिखा जाता है इंटू 10⁻⁶, ताकि ये सारे जीरो लिखते हुए इतनी जरूरत नहीं है। दिस इज एन आयत कंटेनिंग relevant to blood. Consumption of food containing blood is forbidden by Islamic dietary laws. Statement of the Quran Surah Maida के अंदर है, forbidden for you to you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah. So this is all for the erythropoiesis. इसमें आपको क्वेश्चन जो हम देते हैं, the question is usually this one के जो enlist the stages of erythropoiesis, या construct a table showing the different changes, construct a table showing the different changes in
डिफरेंट फेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, और फिर एक है टिपिकल आउटलाइन द फीचर्स ऑफ अ मैच्योर एरिथ्रोसाइट। वीकेंड पे आई सजेस्ट यू पीपल कि आप जो है वो ये 2 क्वेश्चन, इसके साथ तीसरा एक वो मिला लें कि एनलिस्ट द डिफरेंट साइट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये 3 क्वेश्चन सिर्फ अगर आप अटेम्प्ट कर लें तो मंडे को इंशाल्लाह हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। वो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली इसमें याद करने वाली चीजें हैं। एरिथ्रोपोइसिस के रेगुलेशन टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, सो विल डू इट ऑन मंडे। सर आई एक होप। क्वेश्चन। जी क्वेश्चन पूछे अब। सर वो आपने पहले बोला था इट कैन एरिथ्रोब्लास्ट कैन डिफॉर्म इजीली। सर ये जब डेड होगा तब डिफॉर्म होगा या डेड होने से पहले भी डिफॉर्म? डिफॉर्मिटी से मुराद है फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी मुराद है कि इट इज डेड हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर तो वो उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना उन प्रोटीन्स की वजह से, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्प्लीन में। ये डिफॉर्मिटी है कि जब उसको नैरो स्पेसेस ऑफ सर्कुलेशन से जाना पड़े तो ये आराम से वहां से चला जाता है, और इसलिए इसको कहते हैं डिफॉर्म बेहतर हो जाता है। सर लेकिन ऊपर ही आपने बोला नॉर्मली देयर इज नो वेरिएशन इन शेप, तो सर वो डिफॉर्म हो जाएगा तो वो तो सर उसके तो फंक्शन नहीं, वगैरह। ये शेप है जब उसको फ्री छोड़ा जाए। देखो मतलब अगर उसको फ्रीली, अगर तो साइडों से कुछ चीज दबा रही है तो वो तो ठीक है ना, लेकिन अदरवाइज अगर वैसे सर्कुलेशन में है तो एक टिपिकल यही शेप है। इसको आप देखें ना, ये टिपिकल शेप आरबीसी की, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो है इसकी सॉरी मैं वो एक मैसेज आ रहा था मैं उसको पढ़ रहा था, उस तरह एक तो ध्यान चला जाता है। अच्छा देखो शेप जो है ना, ये शेप, प्लीज लिसन, प्लीज सुनो मेरी पहले बात, कि ये जिसने क्वेश्चन किया है कि शेप जो है ये इसकी एक फ्री ब्लड के अंदर यही वाली टिपिकल शेप है। हाँ डिफॉर्म हो जाएगा जब किसी नैरो पार्ट से गुजरेगा, लेकिन अदरवाइज ये नहीं है कि कोई आरबीसी स्टार शेप हो और कोई जो है वो बैलून शेप्ड हो और कोई जो है वो, तो ये इसको टिपिकल डम्बेल अपीयरेंस भी कहते हैं। तो ये शेप जो है ये टिपिकल शेप ये है, और ये इसकी शेप, इसका जो है इसके अंदर नैरो स्पेसेस से गुजरने का डायपिडिसिस की एबिलिटी है, लेकिन जब 120 डेज ओल्ड हो जाएगा तो उसके बाद जब ये स्प्लीन से गुजरेगा तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा अभी एक क्वेश्चन मैं जरा पढ़ लूं, मेरा आया हुआ मैसेज में। सर एक्सक्यूज मी, ईमेल और मैसेज टू यू, क्वेश्चंस रिपीट कर दिए। अच्छा देखिए क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका मैसेज आप लोगों को आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, construct a table to differentiate between the different stages, construct a table to differentiate the features of the different stages of erythropoiesis। फिर मैंने कहा था enlist the different sites of formation of red blood cells, ठीक है जी, and then outline the features of a mature erythrocyte। सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है। जी सर एरिथ्रोब्लास्ट का आपने कहा कि नेगेटिव सरफेस चार्ज होता है, ये क्यों होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोटीन है ना, एनकायरिन स्पेक्ट्रिन, वो सारी जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड है। सर इसका कोई रोल है नेगेटिवली? इसका एज अ बफर और वो वाले रोल है, बफर फंक्शन में इसका रोल है, ठीक है, एज अ ब्लड बफर, उसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके और न्यूट्रलाइज करना, और बफरिंग में रोल है। एक क्वेश्चन अब आया है कि जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरबीसी काउंट इन मेल एंड फीमेल, व्हाई देयर इज डिफरेंस। इसका थोड़ा मजीद क्लियर होगा आपको रेगुलेशन में, लेकिन आपको अभी मैं हिंट इतना बता दूं, दिस इज बेस्ड ऑन टेस्टोस्टेरोन एंड सेकंड बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म। ये याद रखें कि आरबीसी प्रोडक्शन जो होती है
that is usually in proportion to demands of the body. मेल में टेस्टोस्टेरोन है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, ज्यादा जल्दी हाइपोक्सिया डेवलप होता है. हाइपोक्सिया इज अ स्टिमुलेंट. हमारा मंडे का पूरा लेक्चर हाइपोक्सिया एंड आरबीसी पे ही है, लेकिन आपको सिर्फ यही बता दूं कि मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से आरबीसी काउंट ज्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज द मेटाबॉलिज्म ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन इज मोर इन मेल and that's why RBCs are mainly more in male. और भी इसके फिर रेगुलेशन के फैक्टर्स इंशाल्लाह मंडे को करेंगे. ठीक है जी. सर बच्चे अटेंडेंस का पूछ रहे हैं सर. हाँ, अटेंडेंस आप लोगों की हो जाती है अभी. आप लोगों की अटेंडेंस आपकी हम बीच में 1-2 दफा लेते हैं, वो आईटी वालों को बताया है हमने, वो आपके इसके सारी वीडियोस ऑन करके स्क्रीनशॉट लेके. बट फॉर दैट आई एडवाइज यू कि ये जो आपके कुछ आई विल नॉट नेम देम, लेकिन ये जो कुछ उल्टे सीधे नाम है प्लीज वो नहीं आप यहाँ रखें. आप अपने ओरिजिनल नाम के साथ रखें, क्योंकि अटेंडेंस उस स्क्रीनशॉट की बेस पे होती है. और उसको जो है वो वैसे तो उन्होंने ये भी कहा हुआ था आईटी वालों ने तो कि आप वीडियोस फॉर द टाइम बीइंग ऑन रखें, लेकिन अगर वो नहीं भी रखते तो एटलीस्ट अपने ओरिजिनल नाम और रोल नंबर मेंशन कर दें, दैट्स वेरी गुड, बट नाम अपने रखें. ये जो आपके निक नेम्स हैं और ये कोई अपने घर वाले कोई अपने नाम जो हैं तो दैट उस पे फिर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. सो आई एडवाइज यू कि नाम अपने रखें, उसी पे आपकी अटेंडेंस हम ले लेते हैं. और वो अटेंडेंस आपके बीच में 1-2 दफा वो लेके. ठीक है. यस सर, यस सर, थैंक यू. That's all for today. Thank you very much. Stay blessed. सर जी, सर, सर बोलो. रेड ब्लड सेल से जो न्यूक्लियस वगैरह निकल के जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? ये वही बोन मैरो बीच में खत्म, डिसइंटीग्रेट हुए थे खत्म. ठीक है. ओके जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच सर. अल्लाह हाफिज सर.